ارجن سلیوٹ کرنے کے بعد کمرے سے باہر نکل جاتا ہے۔ جنرل چودھری: مہاراج آپ چنتا نہ کریں، ہم پاکستان کو مقابلے کے لیے تیاری کا موقع ہی نہیں دیں گے۔ وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں 6 ستمبر کو لاہور جم خانہ کلب میں شراب پینے اور دوپہر کا کھانا کھانے کا پروگرام بنا چکا ہوں۔ شاستری: مجھے آپ پر وشواس ہے، لیکن ارجن سنگھ کی باتیں سن کر میرا جی کھٹا ہو گیا ہے۔ وہ بار بار یہ کیوں کہتا تھا کہ اگر پاکستان نے مقابلہ کیا تو اسے پرواہ نہیں ہوگی؟ آخر ہمارا ایک ہوائی جہاز بھی کیوں ضائع ہو؟ مجھے تو ایسے محسوس ہوتا تھا کہ وہ بھارت کے جیٹ ہوائی جہازوں کو مٹی کے کھلونے سمجھتا ہے۔ جنرل چودھری: آپ فکر نہ کریں مہاراج، صبح خزانے کے وزیر اور چون جی نے اسے بھارت کے مختلف ہوائی جہازوں کی قیمتوں پر لیکچر دیا تھا۔ شاستری: آپ کا مطلب ہے کہ پہلے اسے ہمارے ہوائی جہازوں کی قیمت معلوم نہیں تھی؟ جنرل چودھری: اسے سب کچھ معلوم تھا مہاراج، لیکن رکشا منتری اور خزانے کے وزیر اسے یہ سمجھانا چاہتے تھے کہ تمہاری معلومات بہت پرانی ہو چکی ہیں۔ اب جیٹ ہوائی جہازوں کی قیمت 50% چڑھ گئی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اب وہ زیادہ احتیاط سے کام لے گا۔ شاستری: اور اب آپ کو بھی احتیاط سے کام لینا چاہیے جنرل صاحب، ہمارے سینچورین ٹینک بہت مہنگے ہیں۔ جنرل چودھری: میری طرف سے تو آپ کو کوئی چنتا نہیں ہونی چاہیے مہاراج۔ شاستری: میں نے آپ کو پھر ایک بار یہ سمجھانے کے لیے روکا تھا کہ سکھ سپاہیوں کے متعلق آپ کو بہت محتاط رہنا چاہیے۔ جنرل چودھری: مجھے آپ کی ہدایت یاد ہے مہاراج، آپ اطمینان رکھیں، اس بات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی سکھ سپاہی یا افسر میدان جنگ سے منہ پھیرنے کی جرت کرے، انہیں سب سے اگلی صف میں رکھا جائے گا۔ شاستری: میری ہرگز یہ خواہش نہیں کہ پاکستان کی افواج ہمارا مقابلہ کریں، لیکن اگر کسی محاذ پر جنگ ہو جائے اور اس کے نتیجے میں بھارت کی فوج سے سکھوں کی نفری کم ہو جائے تو مجھے زیادہ افسوس نہیں ہوگا، لیکن تمہیں کسی ہندو سپاہی کی جان خطرے میں نہیں ڈالنی چاہیے۔ دلی کے آس پاس کے ہندو سپاہیوں کے متعلق تو تمہیں بہت ہی محتاط رہنا چاہیے۔ اگر ان میں سے 200-400 مارے گئے تو چاروں طرف سے ماتمی جلوس دلی کا رخ کریں گے اور پھر آہستہ آہستہ پورے بھارت میں کوہرام مچ جائے گا۔ آل انڈیا ریڈیو 100 ہندو سپاہیوں کے نقصان کو 10 بنانے کی کوشش کرے گا تو بھی ریڈیو سننے والے 10 کو 10,000 بنا دیں گے۔ جنرل چودھری: آپ چنتا نہ کریں مہاراج، میں نے حملہ کرنے والی فوج کی ترتیب یہ رکھی ہے۔ سب سے آگے سکھ ہوں گے، ان کے پیچھے گورکھے اور ان کے ساتھ جنوبی ہندوستان خصوصاً کیرالہ کے سپاہی ہوں گے۔ گورکھے کرائے کے سپاہی ہیں، ان کے تھوڑے بہت نقصان کو دلی میں زیادہ اہمیت نہیں دی جائے گی۔ کیرالہ کے لوگ بھی بھارت کو کافی پریشان رکھتے ہیں، اس لیے ان کی تھوڑی بہت نفری کم ہو جانے سے بھی بھارت کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ ڈوگروں کو ان کے ساتھ رکھا گیا ہے تاکہ وہ انہیں میدان چھوڑ کر بھاگنے سے روک سکیں۔ بھارت ماتا کے وہ سپوت جو دلی کے آس پاس رہتے ہیں سب سے پیچھے رکھے گئے ہیں اور انہیں انتہائی مقدوری کے بغیر دشمن کی فائرنگ کی زد میں لانے کی کوشش نہیں کی جائے گی۔ شاستری: میرا مطلب یہ نہیں کہ انہیں بالکل ہی میدان جنگ سے دور رکھا جائے، انہیں جنگجو بنانے کے لیے عملی سبق کی ضرورت ہے۔ جب آپ کو اس بات کا اچھی طرح اطمینان ہو جائے کہ دشمن حوصلہ ہار چکا ہے اور انہیں آگے بڑھ کر زخمی ہونے کا کوئی خطرہ نہیں، اس وقت آپ انہیں کم از کم نہتے لوگوں کے خون سے ہولی کھیلنے کا موقع ضرور دیں۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ صرف مرنے سے ڈرتے ہیں، مارنے سے نہیں۔ جنرل چودھری: مجھے اس کا کافی تجربہ ہے مہاراج، میں گزشتہ 18 برس سے اپنی آنکھوں سے ان گنت فسادات دیکھ چکا ہوں۔ بھارت ماتا کے یہ سپوت نہتے مسلمانوں کا خون بہانے میں ہمارے جنگجو سپاہیوں کی نسبت زیادہ تیز ہوتے ہیں، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جب اس جنگ میں موت کا خطرہ مول لیے بغیر مارنے کا موقع ہاتھ آئے گا تو یہ لوگ آگے بڑھنے کے لیے میری اجازت کی ضرورت محسوس نہیں کریں گے۔ اس وقت بھارت کے سیناپتی کی حیثیت صرف ایک تماشائی کی ہوگی
और मेरा हुक्म सुनने की बजाय ये लोग जनसंघ और सेवक संघ के लीडरों के इशारों पर चलना ज्यादा पसंद करेंगे। महाराज, आपको मालूम है कि इस वक्त हिंदू महासभा, जनसंघ और राष्ट्रीय सेवक संघ के बड़े बड़े लीडर श्री गुलजारी लाल नंदा से मुलाकात कर रहे हैं। शास्त्री: मुझे मालूम नहीं, आपको कैसे पता चला? मुझे उन्होंने टेलीफोन पर इस खुफिया मुलाकात में शरीक होने की दावत दी थी। वो ये कहते थे कि इन लोगों को काम पर लगाने के लिए तुम्हारे मशवरों की जरूरत है, लेकिन मैंने जवाब दिया था कि मैं महामंत्री के पास जा रहा हूँ। शास्त्री: फिर उन्होंने क्या कहा? फिर उन्होंने ये कहा कि अगर महामंत्री के घर पर कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है तो मैं भी आना चाहता हूँ, उन लोगों के साथ थोड़ी बातें हो जाएंगी। मैंने जवाब दिया कि मुझे किसी कॉन्फ्रेंस का इल्म नहीं। महामंत्री ने मुझे और एयर मार्शल अर्जुन सिंह को चंद मिनट के लिए बुलाया है। फिर उन्होंने कहा, बहुत अच्छा, वापसी पर मेरे मकान से होते जाना। शास्त्री: नंदा जी इन लोगों को खुश करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। मुझे यकीन है कि चमन जी भी वहां पहुंच गए होंगे और उन्हें हमले का सारा प्लान समझा रहे होंगे। जनरल चौधरी: महाराज, आप परेशान ना हो, मुझे यकीन है कि ये लोग हर राज की हिफाजत कर सकते हैं। शास्त्री: मुझे ये डर नहीं, मैं ये जानता हूं, महासभाइयों, जनसंघियों और सेवक संघियों के पास हमारे जंगी राज कांग्रेस के लीडरों से कम महफूज नहीं। लेकिन इस बात पर एतराज है कि नंदा जी हमेशा हमसे बाला बाला उन्हें खुश करने की कोशिश करते रहते हैं। जनरल चौधरी: इससे क्या फर्क पड़ता है महाराज? उन्हें खुश करने के लिए आपके इख्तियारात नंदा जी के इख्तियारात से कहीं ज्यादा हैं। शास्त्री: जनरल साहब, आपने हैदराबाद और उसके बाद गोवा पर चढ़ाई करके भारत माता का दिल मोह लिया था, और अगर आपने इस मुहिम में भी 100% कामयाबी हासिल की तो सारी दुनिया पर भारत की धाक बैठ जाएगी। जब चटागांग से लंडी कोतल तक अखंड भारत का सिक्का चलेगा तो जनूब मशरकी एशिया का कोई मुल्क हमारे सामने सर उठाने की जुर्रत नहीं करेगा। बर्मा, सिलोन, नेपाल और अफगानिस्तान जैसे मुल्क हमारे रहमो करम पर होंगे और हम जब चाहें उन पर चढ़ दौड़ेंगे। जनूब मशरकी एशिया का कोई मुल्क हमारी ख्वाहिश के खिलाफ दुनिया के बड़े ब्लॉकों से 1 रुपया या 1 कारतूस भी हासिल नहीं कर सकेगा। सिर्फ भारत एक ऐसा मुल्क होगा जिसे इख्तिसादी और फौजी मदद का मुस्तहिक समझा जाएगा। जनरल चौधरी: मुझ पर विश्वास कीजिए महाराज, आप मेरे हाथों हैदराबाद और गोवा का हश्र देख चुके हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इस मर्तबा भी आपके एतमाद को ठेस नहीं लगने दूंगा। और जैसा कि मेरे दोस्त सरदार अर्जुन सिंह ने कहा था, आपको सिर्फ इस बात का अफसोस होगा कि ये खेल इतनी जल्दी खत्म कैसे हो गया। शास्त्री: आपका दोस्त अर्जुन सिंह बेवकूफ है। मुझे हरगिज इस बात का अफसोस नहीं होगा कि आप इस जंग को जल्द अज जल्द खत्म करने की कोशिश करेंगे। अगर आपकी इन्फेंट्री के सिपाही 3 मील फी घंटा के हिसाब से चलने का प्रोग्राम बना सकते हैं तो उन्हें 10 मील फी घंटा की रफ्तार से भागने का हुक्म दें। अगर आपके टैंक 30 मील फी घंटा के हिसाब से दौड़ सकते हैं तो भगवान के लिए इस खेल को लंबा करने के लिए उन्हें 2 मील फी घंटा के हिसाब से न चलाएं। ये खेल एक सिपाही के लिए दिलचस्प हो सकता है, लेकिन मैं सिपाही नहीं हूं। मुझे जंग का एक एक दिन बरसों से ज्यादा तवील महसूस होगा। मैं अपनी जिंदगी में पाकिस्तान पर भारत की फतह की खबर सुनना चाहता हूं। अगर आप मेरी जिंदगी की कोई कीमत समझते हैं तो भगवान के लिए इस जंग को हफ्तों की बजाय दिनों और दिनों की बजाय घंटों में खत्म करने की कोशिश कीजिए। जनरल चौधरी: महाराज, अगर आप इस जंग के मुताल्लिक एक सिपाही के जहन से सोचेंगे तो आपको इस कदर परेशानी नहीं होगी। अगर आप हमले के वक्त दिल्ली की बजाय लाहौर के मार्च पर हों तो टैंकों की गड़गड़ाहट, तोपों की धनाधन, मशीन गनों की तड़तड़ाहट और बमों के धमाकों से आपका मुरझाया हुआ चेहरा खिल जाएगा।
भारत के सिपाहियों के मुंह से जय हिंद के नारे सुनकर आप दोबारा जवान हो जाएंगे। फिर जब दिल्ली वापस आकर आप रेडियो पर भारत के आवाम को जंग का आंखों देखा हाल सुनाएंगे तो भारत का हर सपूत ये महसूस करेगा कि आपकी तरह वो भी जवान हो गया है। शास्त्री, तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। मैं मजाक नहीं करता महाराज, तुम वाकई मजाक कर रहे हो। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैंने तोपों के धनाधन और बमों के धमाके सुनने के लिए इस जंग का खतरा मोल नहीं लिया। मेरा मकसद अपने कानों के पर्दे फाड़ना नहीं बल्कि जल्द से जल्द फतह हासिल करना है। जवान होने का नतीजा हासिल करने के लिए मैं भारत के सेनापति की बजाय किसी सन्यासी के पास जाऊंगा। मुझे वचन दो कि तुम लाहौर के बाद गुजरांवाला और गुजरांवाला के बाद रावलपिंडी के रास्ते में रुक नहीं जाओगे। जनरल चौधरी, महाराज मैं आपको वचन देता हूं, लेकिन आपने ये कैसे समझ लिया कि मैं खामखा जंग को लंबा करना चाहता हूं? शास्त्री, नहीं, मैं इस मसले पर बहस नहीं करना चाहता। तुम मुझे वचन दो कि 2-4 दिन बाद मेरे पास आकर जंग लंबी करने की वजूहात बयान नहीं करोगे। जनरल चौधरी, ये कभी नहीं होगा महाराज, मैं आपको वचन देता हूं। शास्त्री इत्मीनान का सांस लेते हुए, जर्नैल साहब, ये आपकी खुशकिस्मती है कि आप भारत के प्रधानमंत्री नहीं हैं, और ये मेरी बदकिस्मती है कि मैं भारत का सेनापति नहीं हूं। अगर आप भारत के प्रधानमंत्री होते तो आप मुझसे ज्यादा परेशान होते। अगर मैं भारत का सेनापति होता तो मैं आपकी परेशानी दूर करने के लिए फौज को ये पैगाम देता कि बहादुरो, तुम्हारा प्रधानमंत्री तुम्हारी फतह की खबर सुनने के लिए बेकरार है। अगर तुम उसे परलोक भेजने का इरादा नहीं कर चुके तो कछुए की चाल चलने की बजाय खरगोश की तरह छलांगे लगाते हुए लाहौर पहुंच जाओ। अगर दुश्मन सो रहा है तो उसे जागने का मौका न दो। अगर वो जाग रहा है तो उसे उठकर हथियार संभालने का मौका न दो। और फिर अगर वो भारत माता की बदकिस्मती से हथियार संभाल कर सामने आ जाए तो उसे फायर करने का मौका न दो। मैं आपकी बात समझ गया हूं महाराज, लेकिन मेरे मुतालिक आपको ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि मैं जानबूझकर 1 मिनट भी ज़ाया करूंगा। अगर मैंने जंग के मुतालिक परेशानी जाहिर नहीं की तो मेरा मकसद आपको ये बताना था कि आपके सेनापति और आपकी फौज का मोराल कितना बुलंद है। शास्त्री, जनरल साहब, मुझे मालूम है कि आपका मोराल बहुत बुलंद है, लेकिन मुझे आपके मोराल की जरूरत नहीं। मैं सिर्फ भारत की फतह की खबर सुनना चाहता हूं। और जब आप मुझे लाहौर के जिमखाना से ये खबर भेजेंगे कि आप फतह की खुशी में शराब पी रहे हैं तो मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि आपकी फौज का मोराल कैसा था। मैं जानता हूं कि भारत के राष्ट्रपति से लेकर चपरासी और सेनापति से लेकर आम सिपाही तक का मोराल सिर्फ फतह की सूरत में कायम रह सकता है। अगर हमें अपनी तवक्को के खिलाफ एक दिन भी ज्यादा जंग करनी पड़ी तो मुझे डर है कि भारत की इज्जत के साथ भारत का मोराल भी खाक में मिल जाएगा। महाराज, मैं आपकी सारी तवक्कुआत पूरी करूंगा, मैं 1 मिनट भी ज़ाया नहीं करूंगा, लेकिन अब मुझे आशीर्वाद दीजिए। शास्त्री आगे बढ़कर जनरल चौधरी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। जनरल चौधरी फौजी सलाम करने के बाद मुड़ता है और कमरे से बाहर निकल जाता है।